Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh passed away on Thursday, December 26 at the age of 92. He was admitted to the All India Institute of Medical Sciences AIIMS in New Delhi after experiencing a sudden loss of consciousness at his residence. Despite immediate medical intervention, he was declared dead at 9:51 p.m. The government has declared a 7-day national mourning period in his honor, during which the national flag will be flown in half-mast across India. Singh's last rites will be held in New Delhi on Saturday with full state honors. His body will be kept for public viewing at his residence, Sri Motilal Nehru Marg. Prime Minister Narendra Modi called Singh one of India's most distinguished leaders, while President Draupadi Murmu called him one of the greatest sons of Bharat and praised his contributions to reforming the Indian economy. As finance minister in 1990s, Singh was instrumental in liberalizing India's economy, transforming it and pulling millions out of poverty. Under his prime ministership, the economy grew by leaps and bounds and India's global standing was bolstered. The Congress has also cancelled all official party programs for 7 days in respect. Industrialists like Gautam Adani and Harsh Goenka also mourned his passing, noting his role in economic reforms. Global figures like former Afghan President Hamid Karzai and former Maldivian President Mohamed Nasheed also expressed their condolences. Karzai said India had lost one of its most illustrious sons, while Nasheed called Singh a benevolent father figure and a good friend of Maldives. Actually, very sad for the country and very sad for the Congress party. Manmohan Singh ji's life throughout, he demonstrates like one of the best statesmen of this country and one of the best administrators of this country. Basically, those who transform the life of the common people of the country through various schemes like Manrega. As far as Congress party is concerned, we lost one of our greatest leaders. During his tenure as a Prime Minister of 10 years and Finance Minister of the 5 years, he demonstrated so many good governance in this country. Basically, this is a great loss for the country. Any discussion happened in Congress party? First of all, we are discussing with the government officers. Then we will talk about a plan. Dr. Manmohan Singh, he was not only Prime Minister of our country, but he was a renowned economist of the world, we can say, and he has contributed a lot as Finance Minister of this country for economic reforms of our country. And I recall my days, I got some privileges to work with Dr. Manmohan Singh. He was Member of Parliament, Rajya Sabha from our Assam for a long time. And we are proud that being a Rajya Sabha member from Assam, he became the Union Finance Minister, and later on he became the Prime Minister of this country. He ruled our country continuously for 10 years. His death is a great loss to our country as well as to our Congress party. I had the opportunity to be associated with him while I was a minister in Assam. Thereafter also, I had the privilege to be associated with him as Rajya Sabha member. He was also Rajya Sabha member during that time from 16 to 2022. He was a very soft-spoken gentleman. He was a very far-sighted man. And today, the economy of India, what is today, it is the contribution of Dr. Manmohan Singh. Once again, I pay my deep respect, my homage to this great leader. Not just in the Congress party, but across the country. Dr. Manmohan Singh's passing is the end of an era. Manmohan Singh ji in his life
the contributions he made, policy making, to economic growth, to being the governor of the RBI, to be a finance minister, to be the prime minister. He led from the front. He will be remembered for, I think, his honesty and humility, and as a person who was someone who had friends across parties. And I think in all his life, he kept India first, his nation first. He was a true son of India, and we all miss him today for his gentle demeanor, easy to talk to. I had the great privilege of working in his cabinet, and it was an honor to be a part of his cabinet, to be his team. He's always been a very kind soul, a gentle soul. But the initiation in 91, when he opened up the economy, he was instrumental in getting the Indo-US civil nuclear deal, which put India on the map. There are many, many contributions, and I think his story is yet to be told. But he had a full life. My condolences to him, his family, his supporters, and his admirers in India and across the world. मनमोहन सिंह जी के निधन से देश को बहुत क्षति हुआ है। वो एक बहुत ही देश के लिए आर्थिक क्षेत्र में उनका योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। देश के आरबीआई के गवर्नर, आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनका इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी सदैव देश याद करता रहेगा। मैं उनकी इस जो उनकी मृत्यु हुई है उसकी क्षति हम सबको, देश के लिए बहुत दुखद है और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया आपको। डॉक्टर साहब का निधन देश के लिए एक बड़ी अपूर्णीय क्षति है। वो भारत माता के एक ऐसे पुत्र थे जिन्होंने अपना जीवन भारत को बनाने में समर्पित कर दिया। जो आज का समुन्नत होता हुआ भारत है, उस भारत को बनाने की नींव उन्होंने डाली थी। उसकी बुनियादी नहीं डाली थी, बल्कि उसको आगे भी बढ़ाया था। और उत्तराखंड के ऊपर भी उनका, उत्तराखंड के पुनर्निर्माण का जब वहाँ माया दैवी आपदा के बाद 2013 की, तो उसमें उन्होंने उदारता पूर्वक उत्तराखंड की मदद की। एक बड़ा आर्थिक पैकेज दिया, जिसके कारण हम सारे केदारनाथ सहित सारे पुनर्निर्माण के कामों को और पुनर्वास के कामों को पूरा कर पाए। जो कुंभ था हरिद्वार का, उस कुंभ में उनके कार्यकाल में उन्होंने जितना मांगा, हमने करीब 700 करोड़ के करीब मांगा, उन्होंने 700 करोड़ से ज्यादा दिया। 769 करोड़ है कितना रुपया दिया उत्तराखंड को। कांग्रेस के लिए कितनी क्षति हुई है? कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी क्षति है। वो एक सहारा थे, हमारे भरोसा थे, पथ प्रदर्शक थे। जो राहुल जी ने कहा कि वो मेरे मार्गदर्शक थे। तो और जब कोई कठिन समय आता था तो वो पार्टी का मार्गदर्शन भी करते थे। हम, उनकी उपस्थिति हमारे लिए भरोसा थी, और उनकी उपस्थिति हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक भरोसा थी। नियति के क्रूर हाथों ने उनको हमसे छीन लिया। मैं अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूं। मेरे जीवन के वो क्षण सबसे बहुमूल्य है मेरे लिए, जब मैंने उनके मार्गदर्शन में काम किया, उनके नेतृत्व में काम किया। साथ रहे, कितनी बड़ी क्षति है देश के लिए? देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है।
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। लालू जी, आप हमेशा उनके जन्मदिन पर या जब भी कुछ होता था तब फ़ोन करते थे, हम लोग को याद है, और बहुत अच्छे ताल्लुकात आपके उनके साथ रहे। बहुत अच्छा ताल्लुकात, मेरी प्रशंसा बहुत करते थे। उनके काल में ही रेलवे में भाड़ा कम किया गया, देश आगे उन्नति किया, काफ़ी उन्नति किया। 10 साल तक वो प्रधानमंत्री थे, आप लोगों को मालूम ही है। उनका नहीं रहे, बहुत तकलीफ। देखिए, बड़ा दुखद है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है। हम सबको इससे गहरा शोक है और मनमोहन जी के परिवार के साथ हम सबकी संवेदना जुड़ी है और हम सब उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। सर, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश भर में पीडीए अभियान चला रही है, कैसे देखते हैं इस अभियान को आप? देखिए, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी को ये बताना चाहिए कि जिस पीडीए का वो नारा दे रही है, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज का हितैषी बनने का जो ढोंग और नाटक ये समाजवादी पार्टी रच रही है, इसी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की याद समाजवादी पार्टी को 2012 से लेकर 17 तक क्यों नहीं आई? आप 2012 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश का जो समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, अगर उस शासनकाल को आप देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि सबसे ज्यादा अगर अत्याचार, धोखा और पाखंड किसी के साथ हुआ तो वो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के साथ हुआ। सबसे ज्यादा दलित भाइयों के ऊपर हमले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए। किस तरीके से पिछड़ों के तमाम जो सुविधाएं हैं उस सुविधाओं का हनन करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। और अल्पसंख्यक समाज के साथ आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी ने अल्पसंख्यक समाज को गुमराह किया है, उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो समाजवादी पार्टी ने की है। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है, केवल और केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरे करने का एजेंडा है। उनको न समाज से कोई मतलब है, न देश और प्रदेश के विकास से कोई मतलब है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का निधन का समाचार सभी के लिए बहुत दुख भरा समाचार है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, उनके सभी चाहने वालों को इस दुख की घड़ी में भगवान शक्ति प्रदान करे। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परिवार के और सभी संबंधियों को उनके जाने की इस क्षति का यानी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं उनको प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि अपने चरणों में उनको स्थान दें। धन्यवाद। It's a great loss for the nation. I offer my condolences to the family of Manmohan Singh ji. And he's always been an inspiration for youngsters also, especially in the parliament. We have seen that at that age, when he was a member, he was attending all these sessions. And also the contributions that he has made to the country, especially during the economic liberalization that the country went through, will always be remembered by each and every Indian. So it's a great loss for the nation. We all mourn with the family members. Will you go to the family? We'll see how the arrangements are done. So we have a cabinet at 11. We'll see after that. Thank you. और हमें और आपको याद होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी रहते, गवर्नर रिजर्व बैंक के रहते हुए और प्रधानमंत्री के रूप में उस समय देश को संभाला जिस समय पूरा विश्व आर्थिक तंगी के से गुजर रहा था। और उन्होंने न सिर्फ देश को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया, बल्कि देश में वो आत्मविश्वास जगाया कि भारतवर्ष किसी भी स्थिति में अपने आप में सक्षम है। ऐसी शख्सियत का जाना निश्चित ही ये देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। मेरी श्रद्धांजलि है कांग्रेस पार्टी की सभी, क्योंकि हम सब के अग्रणी थे, हम सब के मार्गदर्शक थे। आज उनके जाने से जो क्षति हुई है
वो अपूर्णीय है। दूसरा सर, भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में आपको पता है बारिश को शुभ माना जाता है इन घड़ी में, तो आज प्रदूषण का स्तर भी जो है बारिश से दिल्ली को बड़ी राहत मिली है और शुभ संकेत है मनमोहन सिंह के जाते जाते भी। देखिए, डॉक्टर साहब ने एक बहुत साधारण परिवार से में जन्म के पश्चात और वो ऊंचाइयां छुई जो हम सबके सामने है। ऐसे समय में उनका जाना, उन्होंने बहुत एक सुखद जीवन जिया, एक देश के ऊपर देश का भला करते हुए उन्होंने देश को आगे ले जाने का काम किया। जिस समय भी जाते हैं बुजुर्ग का रहना, उनकी छाया सर के ऊपर रहनी, वो हमेशा बहुत अच्छी होती है। लेकिन ऐसे समय में जाना निश्चित ही, उनकी 92 साल की उम्र हो चुकी थी और मैं तो उनको याद कर सकते हैं, देश आज उनको याद करता है, देश उनका धन्यवाद करता है कि उन्होंने देश को उस समय संभाला जब बहुत सारी आर्थिक तंगी थी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है सारे देश के लिए, बिकॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह अकेले हिंदुस्तानी नहीं थे, ये तो वर्ल्ड फिगर थे और मैं इनको इकोनॉमी का आइंस्टाइन कहूंगा। और आप ये देखिए कि जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा को मैं कोट कर रहा हूं कि जब भी अमेरिका की इकोनॉमी में कोई भी उनको परेशानी आती थी, वो कहते थे मैं अपने गुरु को, वो अपना इकोनॉमिक गुरु उनको मानते थे, मैं फोन उठाता हूं, डॉक्टर साहब से बात करता हूं और अपनी अमेरिकन इकोनॉमी के फिक्स करने के तौर तरीके ढूंढता हूं। सो इतनी बड़ी शख्सियत और सबसे बड़ी बात थी बहुत ईमानदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और हिंदुस्तान में जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं अर्ली 19s में, उनका मार्गदर्शन इन्होंने किया है। आज हिंदुस्तान जहां भी पहुंचा हुआ है, दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकॉनमीज में है, उसका श्रेय जो है सीधे तौर मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को देना चाहता हूं और विशेष तौर पंजाबी और श्री अमृतसर का पवित्र शहर जो है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को हमेशा याद रखेगा, क्योंकि 14 साल की उम्र में वो पाकिस्तान से आकर उनके पेरेंट्स अमृतसर बसे थे। सो इनिशियल उनकी स्कूलिंग भी, कॉलेज भी वो अमृतसर से ही उन्होंने किया है। तो अमृतसर की डेवलपमेंट के लिए, अमृतसर को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी जो वाघा बॉर्डर है उस पर बहुत सारी फैसिलिटीज दी हैं हमें। गुलियारा स्कीम में भी बहुत सारे सेंटर के पैसे आए, डॉक्टर साहब ने एलिवेटेड हाईवे जो दिए हुए हैं। सो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो हमेशा पंजाब और देश याद रखेगा। कांग्रेस का नहीं, देश का सबसे बड़ा लॉस है और 100 साल में ऐसा बेटा कोई माँ उसको जन्म देती है। सो इट्स अ बिग नेशनल लॉस। बहुत ही दुख हो रहा है आज मनमोहन सिंह साहब हमारे में नहीं रहे। 10 साल तक हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो कभी नहीं मिलेंगे अभी। हमारी देश की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो केवल और केवल मनमोहन सिंह साहब के वजह से स्थिर रही, उनके पॉलिसीज़ के वजह से। साइलेंटली रेवोल्यूशन, थिंकिंग रेवोल्यूशन मनमोहन सिंह साहब ने इस देश में लाया। आज अक्रॉस पार्टी लाइन सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बिग लॉस टू द कंट्री। कल हम जब CWC में थे तब वहाँ पे 100 साल मना रहे थे गांधी जी के प्रेसिडेंट होने के, AICC के, और मनमोहन सिंह साहब का जिक्र बहुत बार हुआ। किसको पता था कि कुछ ही क्षणों बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ेगी। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके फैमिली के लिए और मेरे फादर के साथ बहुत साल उनके कैबिनेट में मेरे फादर शामिल थे और मैंने बहुत बार उनको करीब से देखने का मुझे किस्मत मिली। और आज एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते बहुत दुख हो रहा है, जैसे कि फैमिली का बहुत बड़ा सदस्य और देश का बड़ा नेता आज हमारे में नहीं रहे। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से देश ने न केवल एक कुशल राजनीतिक बल्कि देश सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व और कुशल अर्थशास्त्री को खोया है। पंजाब के एक साधारण गांव, छोटे गांव से भारत के अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री बनने का सफर
उनके समर्पण और देश की सेवा को दर्शाता है। उनको हमेशा ही सादगी और विद्वता के लिए याद किया जाएगा। देश के विकास के लिए किए गए आर्थिक फैसलों में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार तथा प्रियजनों को इस कठिन समय में संबल दे। मनमोहन सिंह जी आज नहीं रहे हमारे बीच में। वो एक बहुत ही काबिल व्यक्ति थे। आरबीआई के गवर्नर रहे, फिर देश के वित्त मंत्री रहे और फिर देश के प्रधानमंत्री रहे। और वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ईमानदार आदमी थे। मेरे को मौका मिला जब वो वित्त मंत्री थे, मैं सांसद था, और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन आई, वो उस समय के वित्त मंत्री के। और उस समय जब एकदम खाद की कीमत बढ़ी, मैं उनको मिला, पार्लियामेंट्री फार्मर्स फोरम का मैं सेक्रेटरी था। तो उन्होंने कहा कि देश के हालात बहुत गंभीर है, हमारा सोना भी बाहर रखा हुआ है और इसमें महत्व है। लेकिन जब मैंने जिद की तो उन्होंने छोटे किसान का खाद की कीमत कम रखी, बड़े किसान की बढ़ाई। लेकिन देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर लाने के लिए किसी व्यक्ति को श्रेय जाता है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी जाता है। आज वो नहीं रहे, देश को अच्छी स्थिति में छोड़ के गए, आज वो नहीं है। हम पूरे जो है हमारे पद प्रत्यक्ष रहेंगे वो, और जो उनसे घाटा हुआ है देश को वो भरना तो नामुमकिन है। It's the biggest loss, not big loss. Like he mentioned, history will be kinder to him. Today each and every one are hurt, upset, because let's not forget what he was. Let's not forget 1991. Let's not forget what he did as a Prime Minister. When he wanted to do something, he did it. Let's not forget the Indo-US nuclear deal in 2008, where a government was going to fall and he said, I will get this deal through. Let's not forget in 2008, when everybody, all the world, there was the economic crisis, all over the world, India stood its ground. Everybody will remember, and what a man. I've had the privilege to be with him for an hour, to talking to him and his wife, and he told me, I still remember, Shama, you're a fighter. I'm very happy with the way you are doing your debates on TV, you're fighting for the Congress party. So I said, sir, आप तो इतना धीरे से बोलते हो, you're इतना काम हो, और मैं उसके opposite हूँ। नहीं शमा, you're doing a fantastic job. मैं 15 मिनट के लिए मीटिंग के लिए गई थी, for a 15-minute meeting. It went up to 1 hour. So I feel very distraught, and I wish I could have been more with him. 2007 से 2014 तक जब भी सरकार बदली, उनके साथ बहुत करीबी कार हुए उनके साथ, इसलिए कि वो प्रधानमंत्री थे, मैं चेयरमैन राज्यसभा था। तो उसमें उन्होंने हमेशा कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए और काम किया। इसीलिए आपने देखा कि उनके ज़माने में पार्लियामेंट में ज़्यादा हंगामा नहीं होता था। इसलिए नहीं होता था कि वो जो मेंबर बनते थे उनसे वो बातचीत करके सुलझा लेते थे। अभी होता है ऐसा आपको लगता है? सर, ये भी कहा जाता है और हर बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि जब वैश्विक तंगी आई थी देश में 2007-8 के दौरान, तब भारत देश ऐसा देश रहा जब जो इस तंगी से सुरक्षित रहा, और ये कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ डॉक्टर साहब। देखिए, इसलिए कि वो चीज़ उस दिन नहीं शुरू हुई जो 1991 में उन्होंने पॉलिसी चेंजेस किए, जिसके मुतालिक और लोगों ने जो ज़्यादा करीबी थे वो जानते हैं, देश का नक्शा बदल दिया, पॉलिसी बदल दी, और इसी का फायदा हुआ कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़रा तेजी से हुआ। सर, हालांकि तमाम दफ़ा इस बात का और इस बात को लेकर कहते रहे तमाम नेता कि वो बतौर प्रधानमंत्री जब थे तब वो किसी के इशारे पर काम करते थे, नहीं करते थे। ये भी कहते रहे कि वो कम बात करते हैं, लेकिन इस बात का भी जिक्र होता है कि वो बिना
ज़्यादा आप बोले, उन्होंने देश के अंदर इतनी प्रगति जो है वो आज पहुंचाया, उस पर आपकी क्या राय है सर? जो तमाम नेताओं ने उनको लेकर हमेशा कहा कि भैया वो तो कम बात करते हैं, कम कहते हैं। भाई कम बात करने से क्या मतलब है, काम करते थे ना। बात करने से तो पॉलिसी नहीं बनती है, काम करने से होती है। तो उन्होंने जहाँ बात करने की जरूरत समझी, बात की, लोगों से डिस्कशन किया। हमेशा पार्लियामेंट में जब कभी डिस्कशन हुआ, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी पे हो या फॉरेन पॉलिसी पे हो, हमेशा उन्होंने उसमें भाग लिया। इस 10 साल को सर कैसे उनके प्रधानमंत्री के वक्त को किस तरह से ये देश याद करेगा सर? किस तरह से याद करेगा? पॉलिसी से याद करेगा, और कैसे याद करेंगे? मैं सर, पहले भी तमाम प्रधानमंत्री रहे, उनके कामों का भी जिक्र होता है, राजीव जी के भी कामों का जिक्र होता है, मौजूदा प्रधानमंत्री भी हैं, उनके कामों का भी जिक्र होता है। आप कोई एक दो पॉलिसी उनकी आप कोई बताना चाहें जो सभी प्रधानमंत्रियों के काम से अलग उनको हाईलाइट करती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जिससे देश को बहुत फायदा हुआ। उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी जो थी, वो संबंध दूसरे देशों के साथ अच्छे हुए। अब एक छोटी सी चीज है, पाकिस्तान से हमेशा हमारा झगड़ा रहा है कुछ न कुछ, उन्होंने उसको सुलझाने की कोशिश की, कश्मीर के प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश की, कश्मीर के लोगों से जाके बात की, कमेटी बनाई। इसी तरह से औरों के साथ भी, चीन के साथ भी हुआ और पड़ोसियों के साथ भी हुआ। तो सूझबूझ के आदमी थे और वो जानते थे कि अगर देश को तरक्की करना है तो देश के सामने जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन तलाश करना होगा। आप सर कितने आपका आज क्या प्लान रहेगा, कितने बजे आप उनके घर जाएंगे, कुछ आप अगर साझा करना चाहें हम लोगों के साथ? अब भाई देखेंगे क्या हो रहा है, अभी मुझे डिटेल्स नहीं मालूम है, मैं खुद बीमार हूँ 6-7 महीने से, तो मालूम करके जाऊंगा उनके यहाँ। कितना मुश्किल था आपके लिए जब आपको ये पता लगा सर कि ऐसे अब वो नहीं रहे? भाई डॉक्टर साहब से तो मैं अभी रिटायरमेंट के बाद भी, अभी यानी मैं भी रिटायर हो गया, वो भी रिटायर थे, हर दूसरे तीसरे महीने में उनके पास जाता था। बीमार हो गए थे, बोलने में मुश्किल होती थी, मगर जाता था उनके पास, इसलिए कि उनसे दोस्ती, एक तरफ दोस्ती थी, दूसरी तरफ उनसे ज्ञान मिलता था। सर एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ। हमें अभी भी हमारे सामने वो तस्वीर है जब वो पार्लियामेंट में सुषमा जी के सामने खड़े हुए थे और एक बड़े ही विनम्र लहजे से, शायराना अंदाज में अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी। क्या वो उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह शायराना अंदाज में उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी, अपनी बात भी कह दी, और अब के पार्लियामेंट के अंदर? देखिए, मैं कंपैरिजन नहीं करता हूँ जी। मेरा जो काम था मैंने किया, मेरे बाद किसने किया, कैसे किया, वो आज की बात, वो पब्लिक जानती है, बात वहाँ खत्म हो जाती। That's all we have for now. Keep watching Orange TV.